I hope you are fit and fine, well and good. And I am going to start today the third chapter of NCERT of class 11. In this chapter, we study about a straight line motion or one-dimensional motion. One-dimensional motion or linear motion. These all are same. And this is a actually branch, or this is a part of mechanics. Mechanics is a branch of physics in which we study about motion of particles or body or bodies in a space and time. In a space and time, it has three branches. One is the statics, other is the kinematics, and third is the dynamics. Today we are going to discuss a lot of concept, a lot of definitions regarding the motion of object, types of motion of the object, and don't miss the chance to keep patience to watch whole video. This is the educational video, and educational video is very painful to keep patience to watch all these things. Okay, and who have the patience to learn something, then his or her knowledge will become very enhanced, and that's why I hope you all keep the patience. The term is statics, means the study of body at rest, the study of object at rest, and this one is the study of motion of object without knowing cause. बिना कारण जाने हुए स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, और दिस इज द पार्ट ऑफ आवर requirement in this chapter. And the third one is dynamics, the study of motion of object with knowing cause. With knowing cause means knowing the effect of force, which force is acted, how much force is acted, in which direction force is acted. We will discuss about these all things in dynamics chapter, means in Newton's laws of motion, work, energy, power, and rotational motion maybe also. And here is the kinematics. In this chapter, we study the motion of object without knowing the cause, means there is no accountability of force. And in whole physics, we consider two types of body or object. One is the point mass object, body, point mass, and other is considered as constituent particles, body of constituent particles. Generally, two types of body we taken in physics. One is the point mass object. A body is considered as point mass. A body is considered as point mass. A body is considered as point mass whose path travels much greater than its size. Much greater than its size. This is simple. Point mass
is an object whose size is whose path is much greater than its size, as like a Earth. Earth is a point mass with respect to, Earth is considered as a point mass with respect to its orbit. Okay, Earth is considered a point mass with respect to its orbit. Orbit के रिस्पेक्ट में एक अर्थ जो है वो पॉइंट मास हो सकता है, लेकिन अर्थ पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट जिसका पाथ बहुत छोटा हो, ट्रेवल पाथ कुछ मीटर हो, तो वैसे सिचुएशन में वह बॉडी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएगा, पॉइंट मास नहीं कहलाएगा. तो कंस्टिट्यूएंट particles means constituent particles body means a body whose constituent particles move simultaneously, both are same things, but in physics we are using in different way only. And another is a rigid body. Rigid body is a body does not deform under the influence of force. The value of force is whatever. Okay, and practically there is no rigid body. This is the ideal situation in physics. A pool is, or a breeze is rigid, considered a rigid body for a single man, but for the use of troops, use of trucks and buses, that same breeze may deform after applying the weight on it, and that's why a rigid body does not exist in practically. But there are so many cases in physics. The physics of rigid body is different than the simple theory, and that's why it is the matter of higher classes. And we focus on two things. One is the point mass object and other is the body of constituent particles. There are two types. Yes, now the topic is rest and motion. A body is said to be at rest. A body is said to be at rest which does not change its position, with respect to surrounding or time, And another is motion. A body is said to be in motion whose position changes with time or surroundings. Means rest and motion are relative term. Rest and motion are relative term. They are related with a reference body. Reference body is any things from which can observe the other body. Suppose any body may be considered as reference body, and the axis of coordinates of this body is x, y and z, known as reference frame, and axis is called reference axis. This is called reference body. And x, y and z axis x, y and z are reference axis, and the whole frame is called reference frame. It means the situation of rest and motion of a particular body defined with respect to a reference body, means a body, means an observer. A man, maybe man or other planet or any also camera, also satellite, maybe observer is everywhere. You may consider it.
and every observer is considered as a reference body, and that reference body has three axes, x, y and z, and these axes are called reference axis, and the body itself is called reference body, and the origin is called reference point. This is called reference point. Reference point. And reference frame is of two types: inertial and non-inertial frame. Inertial and non-inertial. Inertial frame of reference. Frame of reference. A body moves with a constant velocity, v equal to constant. A body, an observer moves with a constant velocity, or v is constant or a equal to 0, then that type of frame or body is called inertial frame of reference. As like a earth also a inertial frame of reference, because its velocity remains is constant, and that's why earth is considered as a inertial frame of reference. And in second term, the frame of reference is non-inertial. Non-inertial frame of reference. Such type of frame of reference is moves with a variable velocity, means it is not constant, and acceleration is not equal to 0. In this situation, a body is in accelerated motion as like a car moving on the road with variable velocity, or any body which is accelerated considered as non-inertial frame of reference, or a body which is considered as inertial frame whose velocity is constant and acceleration is 0. Then inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, and inertial frame of reference. And frame of reference means just a body or observer. One more thing here, there is no body is absolutely at rest. Even galaxy is also expanded, sun also in motion, earth is also in motion, galaxy is also in motion. Actually, there is no body absolutely at rest in universe, and every body is in motion, and we define rest with respect to the reference frame. Suppose this board is at rest with respect to the walls of the room, but with respect to the fan rotating in the room is in motion, and it is in rotational motion opposite to the rotation of fan. This is very surprisingly. This board is in motion or rotational motion with respect to fan, means an observer is sitting on rotating fan, then this board is in motion, rotational motion or circular motion, maybe you can say circular motion. And what is the difference between circular motion, rotational motion, vibration motion and oscillatory motion? These all are I will discuss just now. Another topic is types of motion. It is of different types on the basis of different way. And the first way is uniform and non-uniform motion. Uniform and non-uniform motion. And this type of motion is on the basis of magnitude of its speed or distance traveled in a time interval. Then a body is said to be in uniform motion. A body is said to be in uniform motion which travels equal distance in equal interval of time. Just like consider 2 points A and B, and this is the path of the point from A to B, and the time
considered as, here is the t equal to 0, here equal to t equal to 1 second, t equal to 2 second, t equal to 3 second, t equal to 4 second, and so on. And the distance traveled by the body is, in every interval of time, is x. It means the distance time interval is everywhere. The time interval is 1 second. Here is also 1 second. Here is also 1 second, and here is also 1 second. Time interval is 1 second, and distance traveled is x. It means a body moves with uniform motion. And here is the velocity is constant and acceleration is 0. Okay, and I hope you know the definition of velocity and acceleration. And v equal to constant, acceleration v equal to 0. And other thing is, velocity constant means a body moves with a 50 km per hour, then it remains moves with a 50 km per hour. And one more thing here, only one formula S equal to Vt is applicable, because U equal to V, then you may write S equal to Ut. Remains all formulae of equation of motion is valid, but it is not a just like a practical Ut plus 1 by 1 plus AT square. Then A is 0, then it remains, this one is the 0, then it remains Ut only. If you use V square equal to U square plus 2S, if it is 0, then V equal to U, and only this formula is applicable here, S equal to Vt, and this formula is applicable only in this situation, means uniform motion. And the second definition is non-uniform motion. A body is said to be in non-uniform motion which travels unequal distance in equal interval of time. Simple. And this situation is just like a body, A here and B here, and the distance between A and B is this. And in every interval of time, equal interval of time, same as t equal to 0, t equal to 1 second, t equal to 2 second, t equal to 3 second, and each interval of time, the distance traveled by this body is x1, x2, x3, and so on. And in equal interval of time, that is the time interval here is 1 second, time interval is 1 second, time interval is 1 second, and this time interval means the final time minus initial time. 1 minus 0 equal to 1, 2 minus 1 equal to 1, 3 minus 2 equal to 1. This is the time interval. And this time, in this time interval, the distance is unequal, x1, x2 and x3. And that's why it is called non-uniform motion. Non-uniform motion of two types. One is uniformly accelerated motion. And actually this is in our syllabus. Means here acceleration remains constant, but velocity is variable. Velocity variable and acceleration remains constant. And other is second type, non-uniformly accelerated motion. And here acceleration not equal to constant. इस केस में acceleration constant नहीं होगा, मतलब acceleration खुद vary करेगा. तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, मतलब एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट नहीं होगा. लेकिन हम लोग के सिलेबस में जनरली जो है, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. मतलब हम लोग दो ही कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एस इक्वल टू वीटी और एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन.
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो इक्वेशन आता है वो आपका है जनरली तीन इक्वेशन जो आप लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, कि हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो एक है इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वो आपका सारा जो है वो एक्सेलरेशन को हम लोग कांस्टेंट मान के बनाते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला आप लिखने वाले हैं एस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर and v square equal to u square plus 2as and more is v plus u equal to 2s by t and one is also more s ttth, मतलब distance traveled in last 1 second, distance traveled in last 1 second, and this equation is u plus a by 2 or t minus 1. The meaning of this equation is v is the final velocity. Okay, of final velocity means first of all I want to discuss u. U equal to initial velocity. Initial velocity means the velocity of object, the velocity of body or object at time t equal to 0 or at the time of observation start. जनरली कुछ लोग कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी के मतलब लोग को कंफ्यूजन है कि जहां से बॉडी स्टार्ट करे, तो कहीं से बॉडी स्टार्ट करेगा तो रेस्ट ही रहेगा, इसका मतलब यू का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो है ये डिफिनीशन को याद रखिएगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वेलोसिटी कब लेना है, जब टाइम 0 हो। और टाइम 0 कब होता है, जब किसी का ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सपोज दैट आपका क्लास स्टार्ट होता है मान लीजिए कि 11 बजे, तो आपका क्लास का टाइम हुआ 11 से 12, ठीक है टाइम। तो उसी तरह से आपको टाइम 0 पूछेगा तो इसका मतलब जो 11 बजे आप जो तय कर रहे हैं, जो कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका क्लास का पीरियड है टाइम इक्वल टू 11 AM से लेकर के 12 AM तक, तो आप इसको 0 आवर कंसीडर कीजिए और तब यहाँ पर कितना होगा 1 आवर होगा। तो टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल निकालिएगा तो 1 माइनस 0 कितना होगा 1 आवर, और इसको भी माइनस, टाइम को भी माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 1 आवर का ही टाइम आएगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर टाइम 0 के मतलब क्या होता है, जहां से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए हो, जहां से कोई काम शुरू किए हो, उसको कहते हैं टाइम 0। यानी कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 0 के मतलब होता है अगर कोई बॉडी मूव करते हुए आ रहा हो और जिस समय उस बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए उस टाइम पे कौन सा वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। वह 0 भी हो सकता है, वह कुछ वैल्यू भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। और फाइनल वेलोसिटी किसको कहेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी जहां तक आप उसको ऑब्जर्वेशन खत्म करते हैं, है ना, जहां तक उसको इंड करते हैं। मान ली जाए कि आप एक प्लेटफॉर्म के एक इंड से दूसरे इंड तक के ट्रेन का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आपका इनिशियल टाइम हुआ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो हुआ, टाइम जहां 0 ले रहे हैं, वो ट्रेन के एंट्री से लेकर के एग्जिट तक के टाइम को हम लोग टाइम इंटरवल कहेंगे, और जो एंट्री कर रहा है उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और जहां प्लेटफॉर्म पे इंड हो रहा है वहां जो वेलोसिटी हुआ उसको कहेंगे v कहेंगे, ठीक है। तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी के मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। And the second thing is final velocity. V is final velocity. Final velocity means velocity of body at the time to end the observation. At the time t भी कह सकते हो, at the time t और at end of observation, जहां पे आप अपना ऑब्जर्वेशन समाप्त कर दिए। क्योंकि देखिए
रेस्ट एंड मोशन या जो भी काइनेमेटिक्स है वो सारा डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पे ही। तो ऑब्जर्वेशन को नहीं छोड़िएगा। ऑब्जर्वर मतलब वो जो कि जो उसका किसी बॉडी का मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर वो हुआ। जो कोई भी पार्टिकुलर मैन हो चाहे कुछ भी हो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जर्वर। वह रेफरेंस फ्रेम में भी ले सकते हो, जब जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम लोग काम करेंगे, है ना। रेफरेंस फ्रेम लेना होगा तब लेंगे, रेफरेंस एक्सिस लेना होगा तब लेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेना होगा तब लेंगे। जब जैसा रिक्वायरमेंट हो उस तरह से उसको ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है, उसका यूज करेंगे। लेकिन यहाँ जो हम समझा रहे हैं मैक्सिमम को यही गलती होता है कि फाइनल वेलोसिटी में जीरो होगा या फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है ना, कुछ और वैल्यू भी हो सकता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है जिसके कारण से न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है। तो एक तो पहला बात है, वीडियो आप स्किप बंद एकदम नहीं कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही वीडियो से पढ़िए, कोई भी गैप मत दीजिए। क्लास को समझिए कि ये क्लास चल रहा है, लाइव क्लास हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, समझिए इसको, कॉपी पे राइट डाउन कीजिए, उसको फेयर बनाइए, स्टेप बाय स्टेप डिफिनेशन लिखिए, कुछ पॉइंट लिखिए, कुछ और भी किताब पढ़िए जिससे कि लगे जब वीडियो खत्म हो जाए तो कुछ और किताब पढ़िए, तब नोट्स बनाइए, तब आपका एक कंप्लीट नोट्स बनेगा। लेकिन जो पॉइंट जहां जहां कंफ्यूजन होता है वहां हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स आराम से बनेगा। यानी कि वेलोसिटी जो हम ले रहे हैं भी, वह जो है जहां पे ऑब्जर्वेशन एंड कर रहे हैं। एक एग्जांपल समझाते हैं, मान लेते हैं कि पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और कोई कार जो है बहुत तेजी से कहीं से चल के आ रहा हो, ठीक है। दो सिचुएशन लेंगे हम लोग। एक सिचुएशन लेंगे कि कोई कार जो है यहां से तेजी से चल के आ रहा है, ठीक, बहुत तेजी से आ रहा है चल के। एक कार को हम एग्जांपल ले रहे हैं भी वेलोसिटी से, और हम लोग का ये दो पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट जो है ऑब्जर्वेशन स्टार्ट का है और यह पॉइंट जो है ऑब्जर्वेशन एंड का। तो अगर यह वेलोसिटी अब डिपेंड करता है और इस डिस्टेंस को, जहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसी को हम लोग प्रायर डिस्टेंस भी करते हैं। दिस डिस्टेंस मतलब जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को हम लोग एक नाम देते हैं प्रायर डिस्टेंस, यानी पहले का डिस्टेंस, पहले कितना वो तय कर चुका है, दिस इज कॉल्ड। तो इसको इक्वेशन में आप अगर लिखना चाहिएगा तो यह इक्वेशन जो आप लिख रहे हैं s इक्वल टू एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें इसको ऐड कर सकते हैं आप, एक्स नॉट और यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बाद में सीखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये प्रायर डिस्टेंस हुआ जो पहले चल चुका है। जो टाइम आप नोट कर रहे हैं जहां से ऑब्जर्वेशन, ये हो गया ऑब्जर्वेशन स्टार्ट वाला पॉइंट ये हो गया, और ये ऑब्जर्वेशन एंड का पॉइंट हो गया, ऑब्जर्वेशन एंड। यहाँ आप ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। तो जब इससे जो क्रॉस करेगा, मान लीजिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी v होगा, तो यहाँ भी v होगा, तो ये v ही u हो जाएगा, और यहाँ v तो v है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यह बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो भी इसका वेलोसिटी यहाँ v है, तो इस केस में आपका v डैश भी हो सकता है। कब? जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है, तो इसका v डैश हो सकता है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी v डबल डैश हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि यह किस तरह के मोशन से ये बॉडी आ रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर यह बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर भी इसका v है, एंड ऑब्जर्वेशन के एंड पॉइंट पर भी v है। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इसका वेलोसिटी कुछ होगा, इसका वेलोसिटी कुछ होगा। मतलब अगर u आप लेना चाहिएगा फॉर्मूला के हिसाब से, तो u जो हो जाएगा v डैश हो जाएगा, और v जो हो जाएगा v डबल डैश हो जाएगा। अब निकालना पड़ेगा कि v डैश कितना है, v डबल डैश कितना है। अब तो हम केवल यहाँ टर्म समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आपको आया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। अब इनिशियल को कहेगा कि अब ये तो ले ले कि ये भी है जो ले ले, नहीं, ये कैसे आप ले सकते हैं। आप तो डेरिवेशन यहां से स्टार्ट कर रहे थे, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी को आप क्या कहिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कहिएगा, और इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा फाइनल होगा। इसके पहले वो रुका हुआ है, इसके पहले वो चल रहा है, या उसके पहले कितना उसका स्पीड है, ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट जो है ये टाइम, तो इसको आप टाइम इंटरवल भी कहते हो, टाइम पीरियड भी कहते हो,
टोटल टाइम टेकन भी कहते हो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो टाइम जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड, समझ गया। असलेशन तो पढ़ना भी हम लोग को है, तो असलेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये आपको कहलाएगा असलेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसके बारे में जो आप पढ़ना है हमको डिटेल से, बाद में चर्चा करेंगे। और एक ये फॉर्मूला है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो जो टर्म है वो बेसिकली समझाना था यू और भी के बारे में। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और भी मतलब फाइनल वेलोसिटी। सिंपल कहने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना होगा कि इनिशियल किसको कहते हैं, फाइनल किसको कहते हैं। एक और मिसकंसेप्शन जनरली होता है, क्योंकि आप लोग 9th में मोशन पढ़े हैं, तो एक और प्रॉब्लम होता है, जनरली लोग समझता है कि एक बॉडी ऊपर से गिरा रहे हैं और ये बॉडी आकर के नीचे आया तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। लेकिन ये गलत है। आप लोग को लगता है कि जाके रेस्ट में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका इनिशियल वेलोसिटी भले 0 है, क्योंकि इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसका इनिशियल भले 0 है ना, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। क्यों ये रुक जाता है? क्योंकि ये डिफॉर्मेशन करता है, मतलब जब अर्थ पे गिरता है तो कभी ना कुछ अर्थ के जो ग्राउंड है उसको डिफॉर्म करता है, और वो सारा एनर्जी जो है वो डिफॉर्मेशन करने में लॉस कर देता है, या खुद डिफॉर्म हो जाएगा या उसको डिफॉर्म करेगा। वह एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी वो लेके आ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी पहले था, और उसके बाद वो इंक्रीज कर, वो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और यह काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में चाहे खुद को डिफॉर्म कर लेगा या बॉडी को डिफॉर्म कर देगा, अर्थ के ग्राउंड को या जिस ग्राउंड पे गिरेगा उसको डिफॉर्म कर देगा, और सारा एनर्जी उसमें खर्च हो जाएगा। इसलिए वो रेस्ट में हो जाता है, लेकिन हो जाता है, ना कि उसका वेलोसिटी 0 लेंगे, वहां वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। वेलोसिटी 0 लेना गलत है, लेकिन जनरली लोग इसको गलती करता है। अनदर टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द नेचर you may call linear motion, straight line motion, one dimensional motion. All are defined as a body moves on a straight path. A body moves on a straight path. Okay, is called linear motion. In this type of motion, distance is equal to displacement. Magnitude of distance is equal to magnitude of displacement, and magnitude means only the numerical value, and that's why it is called linear motion or a straight line motion or one dimensional motion. And two dimensional means motion in a plane. Two dimensional means the motion, two-dimensional motion, three-dimensional motion, two-dimensional motion. This is also a type of motion in which a body moves in a plane, or it is also known as motion in a plane. This is as like a circular motion in a plane. Example, circular motion or projectile motion also. These all are projectile motion. These all are two-dimensional motion. Means a body moves on a plane, either xy plane. Okay, मतलब ये पहला जो टाइप था वो x एक्सिस और y एक्सिस की अगर बात करेंगे कि अगर x y और z पे चल रहा है तो बॉडी केवल एक लाइन पे चल रहा है, इस डायरेक्शन में। लेकिन ये इस पॉइंट पे देखिएगा तो बॉडी का मोशन जो है, भले जो आप देख रहे हैं कि ये लीनियर, एक्चुअल में तो ये लीनियर मोशन हो जाएगा, लेकिन ये फ्री है वो एक्स एक्सिस में भी जाने के लिए और वाई एक्सिस में जाने के लिए। मतलब जो स्नेक क्रॉलिंग करता है, स्नेक जो क्रॉलिंग करता है वो क्या है, टू डायमेंशनल। हम लोग क्या है, मैन वॉक क्या करता है, टू डायमेंशनल मैन वॉक है ना। जो हम लोग चलते हैं वो भी क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल का बात करेंगे तो जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं है ना, वो क्या कहलाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन है। तो एक अदर टाइप है टाइप्स ऑफ मोशन में कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। तो तीन डायमेंशन मोशन अगर कोई पूछेगा, इसको भी लिख देते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन।
थ्री डायमेंशनल मोशन में आप लोग क्या एग्जांपल दीजिएगा, वर्ड्स को, ठीक है। इसमें कि वो फ्री है तीनों डायरेक्शन, तीनों एक्सिस पे मूव करने के लिए। वर्ड्स जो है कभी एक्स में जाएगा, कभी वाई में जाएगा, कभी जेड में जाएगा, तो अलग अलग डायमेंशंस को वो चूज करता है या फ्री है मूव करने के लिए, तो वैसे मोशन को हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अनदर टाइप है मोशन का, वो है जैसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। कि इसको आप याद रखिएगा कि पॉइंट मास बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और दिस इज द कंस्टिट्यूएंट बॉडी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी, कंस्टिट्यूएंट particles body moves on a straight line, सिंपल डिफिनेशन। और बाकी जो आपको है दिस दैट आप जोड़ना होगा, जोड़ दीजिएगा, है ना। एक पॉइंट मास अगर स्ट्रेट लाइन में चले तो वैसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, मतलब कोई होल बॉडी होगा, अगर उसका हम कंसीडर करके चलेंगे तो वैसे मोशन को हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, ये भी वही टाइप है कि अगर सर्कुलर मोशन आप मान रहे हैं तो वही आपका पॉइंट मास मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक। और रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो वही फिर आ जाएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव्स ऑन ओन एक्सिस, ठीक है। देखिए इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अगर हम सबसे बढ़िया एक अर्थ का नियम लेते हैं कि अगर बीच में ये सन है और कोई भी बॉडी जो है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं, और सन अर्थ का एग्जाम्पल बाद में देंगे, ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई बॉडी लेते हैं जो पॉइंट मास बॉडी हो, ठीक है, इसको लेते हैं पॉइंट मास बॉडी लेंगे और वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। रोटेशनल मोशन जो है, जैसे आप लोग देखे होंगे या नहीं पता नहीं, एक टॉप होता है, टॉय होता है इस तरह का, है ना, इस तरह का बना होता है ये टॉय, है ना। और इसका जो रोटेशन हम लोग लेंगे, टॉप लट्टू जिसको बोलते हैं हिंदी में, टॉप, है ना, मोशन ऑफ टॉप, इसका एक अपना एक्सिस होता है, उस एक्सिस के अबाउट जो है ये मूव करता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग, एक्सिस ये है, हम लोग इस मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। मींस सर्कुलर मोशन मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड रोटेशनल मोशन moves each constituent particles move on a concentric circle, moves on a each particle. Suppose that this is the axis, the particle is in this way, and each particle forms in a circle as like this. It forms in a circle as like this. Every particle, every constituent particles moves in a circle, own circle, concentric circle, and about a fixed axis known as the rotational motion. Circular motion moves on a circular path. Rotational motion, constituent particles moves around a fixed axis known as the rotational motion. And the similar things is revolutionary motion. Revolutionary motion. What is this? This is a motion of a body moves around a massive object. Okay, massive object, just like a earth. If it is a earth, okay, and here is the sun, earth rotates around the sun, means massive body. This type of motion is called revolutionary motion. Revolutionary motion is a circular motion actually, but the difference is here is no need of mass and here is need of mass.
means at the center must be a mass, and that type of motion is called revolutionary motion. Mass or any other particles means a center means just like electron revolves around the proton and neutron, yeah, about the nucleus, and this is also revolutionary motion. Circular motion moves on a circular path. Rotational motion, constituent particle moves around the fixed axis. Revolutionary motion, a particle or body moves on a circular path around any object, massive object, is called revolutionary motion. And next is oscillatory motion and vibratory motion. A particle moves to and fro. To and fro is a phrase. To and fro, back and forth, to and fro, back and forth, back and forth. This is the आगे पीछे in Hindi. आगे पीछे. Okay, just like a pendulum. A pendulum moves, oscillate around this. This is the to and fro motion. Just pendulum goes in this direction, again come back at the mean position. This is the extreme position, this is the extreme position and mean position. This massive object Bob just oscillate or moves from point mean point to extreme point, and extreme to mean to extreme, and extreme to mean. This type of motion is called oscillatory motion. Okay, means a particle or body moves to and fro about a mean position, a mean point or mean position is called oscillatory motion. And the amplitude means what? The displacement from mean to extreme position is called amplitude. The displacement between mean to extreme means this is the mean point, actually this is the extreme point, this is the extreme point, then this is amplitude, this is amplitude. Then amplitude of oscillation is very small, as like a microscopic level, means very small. Then that type of motion is called vibratory motion. As like a, just you pluck the blade and it vibrates. The wings of the insect vibrates. Okay, this type of oscillation is known as vibrational motion, a vibratory motion, whose amplitude is in microscopic level, means very small. Okay, and that type of motion is called vibratory motion. And oscillatory motion is also back and forth motion. Vibratory motion is also back and forth motion, and the only difference is in amplitude. If amplitude is large, then it is oscillatory motion, and amplitude is very small in microscopic level, then it is vibratory motion. And one thing is SHM, simple harmonic motion. One thing is also more SHM, simple harmonic motion. Simple harmonic motion. In this type of motion, the restoring force is also always directly proportional to displacement. Okay, this is the restoring force and this is the x, and the restoring force is directly proportional to displacement of the particle, means this is the displacement x m to e, and this displacement and this force is directly related, and this type of motion is called simple harmonic motion. Yani a body is in oscillatory motion, may be simple harmonic if restoring force is directly proportional to x. Okay, and another topic is terminology of the third chapter of NCERT. Terminology is, the first is distance and displacement. Distance and displacement, the first term. The length of actual path is called distance. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity, and its SI unit is, you may measure in kilometer, feet, and as you wish, but in SI it is meter.
okay, is meter and symbol is m. Somewhere in American English it is written as metre. And next is the actual length. The shortest path between 2 points is called displacement, and direction is fixed from initial to final. Direction is initial to final, means it is a vector quantity. And unit is same as meter and symbol is m. Okay, in fps is feet. Another unit is kilometer. As you know, every unit of length is applicable here, and all rule of vector sum is applicable. Rule of vector sum is applicable to determine the displacement. If you are not completed the vector, then you click the I button and just complete first vector. Then you go through this video. Okay. Vector is very important to understand the many physical quantity in physics. So many quantities in physics is a vector, and the vector operation is just a special than a scalar or number. जो नंबर में आप कैलकुलेशन करते हैं 5 + 5 = 10, वेक्टर रूल से 5 + 5 10 भी हो सकता है, और 5 + 5 0 भी हो सकता है, और 0 और 10 के बीच में सारा वैल्यू हो सकता है. इसलिए इसका सम, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का डिफरेंस, वेक्टर का जनरली सम और मल्टीप्लिकेशन ही होता है. उसको थोड़ा फॉर्म चेंज करने पे तो आप जरूर जा करके जो वेक्टर का वीडियो है उसको देखिए. चलिए नेक्स्ट आते हैं इस पे कि आखिर में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, एग्जांपल कैसे लेंगे. इस एग्जांपल हम लेते हैं इस तरह से कि एक डायमीटर, एक सर्कल पे कोई बॉडी मूव कर रहा है. ठीक है, इसका सेंटर ये है और सेंटर का रेडियस कुछ ले लीजिए, रेडियस हम r ले रहे हैं. ठीक, और कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया. अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल. डिस्टेंस भी निकालना है इसका और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. एक एग्जांपल से हम लोग को पता चल जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. देखिए, डिस्टेंस अभी क्या बोले कि दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. तो एक्चुअल पाथ कौन हुआ, तो डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ क्या हुआ, तो ये आर्क हुआ, ए से बी तक आर्क. और हम लोग देख रहे हैं कि ए से बी तक जो आर्क है वो मालूम होना चाहिए, देना चाहिए ये 90 डिग्री है. तो जब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इसका जो लेंथ का जो पाथ होगा वह 2πr/4 होगा. यानी कि जो डिस्टेंस हमारा निकला ए से बी तक वो आपका निकल गया πr/2. लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ होता है. ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो जो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हैं उसको आप वेक्टर के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके r² + r² का होल रूट कर सकते हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वेक्टर का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं बढ़िया से, और एम करीम और अलग किताब का क्वेश्चन बना चुके हैं, और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो. ठीक है, एक सिंपल हम एग्जांपल दिए हैं, बाकी डिफरेंट टाइप्स है, एक्स वाई जेड करके है, बहुत सारा तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, तो आप निकाल सकते हैं. अनदर टर्म इज स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड इज rate of change of displacement
displacement, rate of change of displacement with respect to surrounding. WRT means with respect to surroundings. Okay, means a speed is equal to just ds by dt. Here, this is okay, and average speed means here is also actually this is the instantaneous speed. This is the instantaneous speed. Instantaneous. And what is the difference between instantaneous and average? I will discuss here. Average speed is the total distance traveled by body by total time taken. ये टोटल टाइम मीन्स अगर कोई पॉइंट ए से बी तक कोई जा रहा है, ऑब्जेक्ट ए से बी तक कोई व्हीकल, कोई कार, कोई भी कुछ जा रहा हो, तो बीच में जितना भी टाइम लगा, चाहे वो रेस्ट कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, वो चाहे रुक करके कुछ भी काम किया हो, वो सारा टाइम लेंगे. इसलिए टोटल टाइम मतलब समझ लीजिए कि टोटल टाइम लेंगे. एक से डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, कितना से कितना तक डिस्टेंस है और कितना टाइम लगा, वो टोटल टाइम कंसीडर यहाँ होगा. ठीक है. अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं. ट्विस्ट क्या लाएंगे कि अगर मान लीजिए कोई सी पॉइंट है और इस सी पॉइंट में ये पहला टाइम इंटरवल 0 से लेकर t1 में x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और दूसरे टाइम इंटरवल में ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दूसरे टाइम इंटरवल में. ठीक है. लेकिन एक है कि इसका जो कांस्टेंट स्पीड v1 है और इस सेक्शन में कांस्टेंट स्पीड v2 है. मतलब ये दोनों v1 एंड v2 कांस्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा. कांस्टेंट होगा तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू v1 t1 और x2 इक्वल टू आप लगा सकते हो v2 t2. याद रखिएगा, अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो नहीं लगा पाइएगा फॉर्मूला, इसलिए कांस्टेंट माने हैं. और t1 को आप लिख सकते हो x1 बाई v1 और t2 को लिख सकते हो x2 बाई v2. ये सब काम पड़ने वाला है, इसलिए लिख रहे हैं. Then total distance is equal to the distance is x1 plus x2 and time is t1 plus what? t2. You may write this formula as like v1 t1 plus v2 t2 by t1 plus t2. You may write this formula as like average speed v bar भी लिख सकते हो तुम, है ना, या v एवरेज भी लिख सकते हो तुम, जो इच्छा करे. तो अब इसको क्या करेंगे कि v1 t1 प्लस v2 t2 बाई जो t1 t2 यहां लिख रहे हैं इसका वैल्यू पुट कर सकते हो x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2. अब इस फॉर्मूला का तो कोई मतलब हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ आ गया तो ये बनाने से कोई फायदा नहीं है. इसलिए इसको आप इमिट करके आप x1 प्लस x2 लिख सकते हो. क्या फायदा क्या हुआ? इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए केवल x और टाइम चाहिए, इसमें निकालने के लिए v और टाइम चाहिए, और इस फॉर्मूला में केवल x और v चाहिए. तो अगर एवरेज स्पीड निकालना हो किसी का तो आप इस 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा. टोटल डिस्टेंस में एक और चीज समझना है कि अगर कोई व्यक्ति ये लौट करके मान ले जाए कोई डी पॉइंट पर भी आता हो, ये लौट जाता है और कोई डी पॉइंट पे भी आता है, इसका मान लेते हैं कि ये x3 डिस्टेंस है. तो इस सिचुएशन में आप जो एवरेज स्पीड निकालने वाले हैं वह x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 ये आप ले सकते हैं. ठीक है. और मान लीजिए कि ये v3 स्पीड से आ रहा हो तो आप सारा रूल फिर से आप लिख सकते हो. ठीक है. लेकिन ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड रहेगा तो, लेकिन एवरेज वेलोसिटी होगा तब क्या कहानी होगा बाद में डिस्कस करते हैं. और इंस्टेंटेनियस कैसे हो गया? एवरेज स्पीड को हम लोग लिखते हैं कि अगर आप इसको लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिखते हैं हम लोग जनरली, या चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम लिखते हैं. चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम लिखते हैं. चेंज इन टाइम लिखते हैं. तो इस केस में जब एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा तो डेल्टा x बाई डेल्टा t लिखना होगा, वेक्टर नहीं बार.
तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी लेना होगा। लेकिन अगर आपको ये लिमिट लेना होगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो जो वेलोसिटी अब लिखाता है dx by dt, और this velocity is called, this is the t, and this velocity is called instantaneous velocity। ये जो आपका बना ये this is called instantaneous velocity, instantaneous speed, velocity नहीं speed। देखिए कहानी क्या है, अगर कोई पार्टिकल A से B तक मूव कर रहा है, A से B तक, और टाइम यहाँ 0 ले रहे हैं, यहाँ टाइम t ले रहे हैं, तो ये जो टाइम इंटरवल हुआ ये बहुत ज्यादा हो गया, t हो गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वैसा 2 पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए, एक ऐसा 2 पॉइंट को नजदीक कंसीडर कर लीजिए जिसका कि टाइम डिफरेंस, 2 पॉइंट का टाइम डिफरेंस वो टेंड्स टू 0 या ना के बराबर हो, मतलब स्पीड एट द टाइम, स्पीड एट पार्टिकुलर टाइम, स्पीड एट पार्टिकुलर टाइम को ही हम लोग कहते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड मीन्स the speed of particle, the velocity of particle, the acceleration of particle at a single time, means the difference of time, the time period, the time interval tends to be 0। means time interval means 2 का difference, 2 टाइम का डिफरेंस अगर लगभग 0 हो, मतलब 0 के मतलब 0 नहीं, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम हो, है ना, उस टाइम में जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। सपोज दैट योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 10 AM and you are going from one place to another place, suppose Patna to Delhi, or a small distance, okay, a small distance in one place to another place, then the speed, velocity or acceleration at the time 10 AM, 10 minutes and 10 seconds, suppose one single time 10:10 में उस व्हीकल का जो स्पीड होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, जो वेलोसिटी होगा, that acceleration, that velocity, that speed is called instantaneous speed, instantaneous velocity, instantaneous acceleration। means एक सिंगल टाइम में, एक पार्टिकुलर टाइम में, एक खास टाइम में जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। एंड द नेक्स्ट इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। आप टाइम भी लिख सकते हो लेकिन हम सराउंडिंग लेके चलते हैं, सराउंडिंग्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसका कहानी ज्यादा हम नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारा कहानी कह चुके हैं और इसको लंबा वीडियो करने से कोई फायदा है नहीं, तो हम सीधा लिखेंगे इसको भी। आप समझ रहे होंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं और dr/dt लिख रहे हैं, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। इसी को आप कहिएगा, चूंकि पार्टिकुलर में बहुत ज्यादा उस पर फोकस किए हम, तो केवल लिख दे रहे हैं ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी may be positive, negative or 0, hence velocity also may be positive, negative और 0। कैसे? अगर कोई पार्टिकल एक इसी पॉइंट से चल करके इसी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और अभी हम समझाए थे कि अगर कोई पार्टिकल A से B तक जा रहा हो और ये लौट करके कोई पॉइंट C पर आता हो, तो अगर ये डिस्टेंस जाने में x लगा, आने में y लगा,
तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह x माइनस बाई कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। और अगर ये A पॉइंट से B तक गया और B से A तक चला आया, A से B तक गया और B से A तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या लीजिएगा, 0 लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक और नेगेटिव कब होगा, अगर कोई ओरिजिन x एक्सिस से चल रहा हो और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि ये 10 मीटर इधर चला है, तो डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हो ना -10i, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। उसी तरह से वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, वेलोसिटी 0 हो सकता है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालते समय ध्यान दीजिएगा कि एवरेज वेलोसिटी जब आप किसी बॉडी का निकालिएगा तो वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम जो लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम निकालिएगा। ये ध्यान देने की बात है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिएगा वेक्टर मेथड से, है ना, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी भी जो होगा ये भी वेक्टर ही कहलाएगा, इसलिए इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कीजिएगा। ये जो फाइंड कीजिएगा इसको, ये भी वेक्टर ही है, तो इसको जो निकालिएगा ये वेक्टर की तरह ट्रीट कीजिएगा। इसमें तो आप लोग जानते ही हैं कि एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और अब हम बार बार नहीं बताएंगे, ये आपका वेक्टर ही है और इसको हम लोग dv/dt लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस है। अगर इंस्टेंटेनियस नहीं लिखना है तो एवरेज में लिखिएगा, तो आपको ऐसे लिखना होगा, इस तरह से। और इसी को अगर लेमडा डेल्टा t टेंड्स टू 0 कीजिएगा, डेल्टा v/डेल्टा t कीजिएगा, तो ये हो जाएगा dv/dt, a इज इक्वल टू दिस। आप यहाँ वेक्टर लगा दे सकते हैं, क्योंकि वेक्टर लिए हैं इसलिए वेक्टर लगा दे सकते हैं, ठीक है। ये था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में होता क्या है, एक्सेलरेशन, इफ अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड, इफ अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड, सपोज इट मींस वेलोसिटी इंक्रीजेस, velocity increases, or force acted in the direction of motion, in the direction of motion। ये तो क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, फोर्स लगेगा। दूसरा केस में कि इफ अ बॉडी इज रिटार्डेड, इफ अ बॉडी इज रिटार्डेड, रिटार्डेड के मतलब होता है कि वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, वेलोसिटी decreases with time, and force acted opposite to motion, force acted on body, net force, force means what, net force, net force acted on body is in opposite direction, in opposite direction of motion, direction of motion। तो ये ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस एक और याद रखिएगा कि रिटार्डेशन इज निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का एक और नाम है डिसलरेशन, डिसलरेशन इज निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, इज निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब एक बॉडी अगर रिटार्डेड है, रिटार्डेशन मोशन में है, तो उसका मतलब होता है क्या कि वह जो है वेलोसिटी उसका डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, और अगर एक्सेलरेशन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो उसका भी एक वीडियो बना हुआ है स्पेशल यूनिट डायमेंशन का, उसको जरूर देखिएगा। मतलब अभी तक के 2 वीडियो हम सजेस्ट किए हैं, एक वेक्टर का, एक यूनिट एंड डायमेंशन का। ये 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, तब मोशन पे आइएगा तो अच्छा रहेगा। और टेक्निकल जो भी प्रूफ वगैरह है वो अगले वीडियो में आएगा, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, उसका ग्राफिकल कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे, इन सारी चीजों को अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम लोग जो अभी बताने वाले हैं यूनिट, यूनिट में कुछ खास नहीं है। अगर डिस्टेंस को ले रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए, तो ये आपको मीटर में कंसीडर कीजिएगा, ठीक है, हमेशा। और अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो कन्वर्ट कर लीजिएगा। दूसरा, अगर स्पीड हो या वेलोसिटी हो, ठीक है,
वेलोसिटी होते हैं। इस केस में आप जो है दिया रहता है किलोमीटर पर आवर में, जनरली इसको चेंज कर लीजिएगा मीटर पर सेकेंड में, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा ये, और बाई आवर है तो 3600, क्या कीजिएगा इसको 3600 सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है कितना 10/36 हो जाता है मीटर पर। तो 1 किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, या इसको 1/3.6 मीटर पर सेकेंड लिखिए, या इसको 5/18 भी बहुत करके याद करता है मीटर पर सेकेंड, है ना। और जनरली जो है आप इसी को कन्वर्ट करते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो 5 इंटू क्या 18 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा है असलरेशन। असलरेशन को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। और ये जो है जी का वैल्यू हमेशा लेते हैं, आएगा इसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड, और इसको 32 भी लेते हैं 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है यूनिट, ये कन्वर्सन आप, अच्छा 1 माइल इक्वल टू आई थिंक 1 माइल पर आवर भी होता है स्पीड का, तो 1 माइल में आपको पता है कि 1.6 किलोमीटर पर आवर होता है, तो 1.6 इंटू 5/18 कर दीजिएगा, तो इतना मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा।